Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation shows it is a IED device, and we are examining it. Is there any terror angle in this? At this stage, I cannot tell anything. Only after investigation, I can confirm you the details. Thank you. സെന്ററിൽ എന്തെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവർ വരുന്ന സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? So far, I don't have any information. Thank you. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സർ? Nobody spoke to me from the MHA. You are going there right now? I will be going there right now. Okay. Special team is there? We will be constituting a special team for this today itself. Today, after I reach the spot, we will constitute a special team. Was there any intelligence information regarding this earlier, prior to this? No specific information. Okay then. Thank you so much. केरल के डीजीपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं यानी डीजीपी सहित एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी मौके पे पहुंचे हुए हैं। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। After visiting scene, I can tell you. No, this is the preliminary information. After visiting, I will give you further details as and when they are coming. Okay. Thank you. तो केरल के डीजीपी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि देखिए अभी शुरुआती जांच में ये समझ आया है कि आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि अभी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि आखिर धमाके में कौन से मेटल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी शुरुआती जांच ये है कि आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर इस बात के लिए कहा है कि देखिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अफवाह जो है वो ना फैलाई जाए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। लेकिन जो धमाका हुआ है केरल के एर्नाकुलम में, उसमें 36 लोग घायल हैं, साथ ही एक शख्स की मौत हो चुकी है। केरल के डीजीपी ने और कुछ क्या कहा है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। हर पहलू से धमाके की जांच की जा रही है और साथ ही साथ सोशल मीडिया के एंगल से जो उन्होंने बड़ी बात कही है उसमें ये भी कहा है कि जो भी अगर भड़काऊ पोस्ट करेगा उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये कुर्सियों की जो संख्या आपको हम दिखा रहे थे धमाके के स्थल की, धमाके की जगह की, उससे ही पता चल रहा है कितनी बड़ी साजिश और कितने लोग वहां पे मौजूद रहे हैं। और इस भीड़ में जाकर धमाका करना अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। हालांकि इसके लिए जो एनआईए सहित बड़ी जांच एजेंसियां हैं देश की, वो सभी वहां पे कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। देखिए सबसे पहले समझिए कि आखिर ये धमाका कितने बजे हुआ था। केरल के डीजीपी की तरफ से बताया गया कि सुबह 9:30 बजे ये धमाका हुआ था। दरअसल एक हॉल में ये धमाका किया गया था जहां पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी, और अगर इस हॉल की क्षमता की बात करें तो 1,500 से 2,000 लोग जो है उनके बैठने की क्षमता इस हॉल में मौजूद है। लेकिन जिस वक्त ये प्रार्थना सभा चल रही थी, ये कार्यक्रम चल रहा था In Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In the convention center, Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing,
we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. Is there any terror angle in that, sir? At this stage, I cannot tell anything. Only after investigation, I can confirm you the details. Thank you. സെന്ററിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അവർ വരുന്ന സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक शख्स की मौत और 36 ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं। ये डीजीपी का आधिकारिक स्टेटमेंट है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल इसलिए हो गया था क्योंकि वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे कन्वेंशन सेंटर में। देखिए, पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ये धमाका हुआ है वहां पर कई लोग मौजूद थे, एक प्रार्थना सभा चल रही थी, लेकिन जो चश्मदीद है उन्होंने ये बताया कि देखिए 5 से 10 सेकंड के अंतराल में 2 बैक टू बैक धमाके हुए जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज थी और धमाके की आवाज भी उतनी ही ज्यादा तेज थी। केरल धमाके में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है जबकि 36 ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एर्नाकुलम धमाके से जुड़ी हुई, जहां पर जो घायल हुए हैं उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 5 से 10 सेकंड के बीच में बैक टू बैक 2 धमाके हुए। जिस हॉल में यह धमाका हुआ उसकी क्षमता तकरीबन 2000 लोगों की है, यानी इतनी संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और धमाके के वक्त वहां 100 से 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और देखिए, इधर धमाके की खबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत भी की है। और इधर जांच के लिए एनआईए और एनएसजी केरल के लिए रवाना हो चुकी है ये टीमें, और ये टीमें वहां पहुंचकर ये जांच करने वाली है कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तो देखिए एर्नाकुलम धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे बड़ी बात यह है केरल के डीजीपी ने इस बात को बताया है कि देखिए जो धमाका हुआ है उसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। शुरुआती जांच में यही पता चला है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण खबर इस ब्लास्ट से जुड़ी यह है कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने खास अलर्ट जारी करा था और उसमें यह कहा था कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है उस दौरान जो भारत के यहूदियों के धर्मस्थल हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हाल ही में स्पेशल सेल ने जो 2 आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी जो मुंबई का चावड़ हाउस था जो 26/11 हमले में भी जिसपे अटैक हुआ था, जो यहूदियों का एक बड़ा धर्मस्थल था, उसकी रेकी की थी। और अब केरल में जिस जगह पर जो ईसाइयों की एक प्रार्थना सभा चल रही थी, यहां पर जानकारी निकल के सामने आ रही कि ये लोग भी जो थे ये यहूदियों की विचारधारा से प्रभावित थे और यहूदियों के जो धर्म है उनका पालन करने वाले अधिकतर लोग थे जिनको निशाना बनाया गया है। तो अब ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगा कि एक आतंकवादी हमला है और इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया। खुद डीजीपी ने अभी ऑन कैमरा ये बात बोली है। तो लगातार जो एनआईए की जो स्टेट की टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है। एनएसजी की टीम जो है बहुत जल्द ये मौके पे पहुंचेगी। फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी है। देश के गृह मंत्री ने वहां के डीजीपी और जो वहां के मुख्यमंत्री है उनसे बात की है और लगातार इस पूरे मामले पे सेंट्रल जो है वो नजर बनाए हुए है। तो अब जिस तरह से लगातार हमास के कल एक लीडर ने भी एक वर्चुअल वहां पे संबोधन किया था और फिलिस्तीन के सपोर्ट में, उसके बाद आज ये धमाका होता है तो इसके मायने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहूदियों को, जो भारत में यहूदी रह रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाने की लगातार जो पुरजोर कोशिश है वो इस्लामिक टेरर की तरफ से की जा रही है। आनंद, एक सवाल मैं जरूर यहां आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार जो टीमें अभी एक्शन के मूड में हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि देश के कुछ राज्यों में, कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन के बहाने हमास के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही है और कल भी ऐसा ही हुआ है केरल में। इसको भी थोड़ा लिंक करके आपस में देखा जा रहा है और वहां चर्च की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि ऐसा कम से कम केरल में नहीं हो, और इसी के बाद ये धमाका 24 घंटे बाद हो जाता है। इसका आपस में क्या कनेक्शन है?